Hi everyone. First thing first, I wish you all a very, very happy Independence Day. Today is a special day for all of us, and we have brought a special thing for you all. As you all know, this is the free VLSI session. It will be a 3-day session, so we will quickly be starting with our first session. Before that, on the host today is me, and the session will be taken by Avdesh sir. So, something about me: I am a digital marketer manager at Payless Promotion. It's an Australian e-commerce company. Also, I've done my ENTC engineering from our very own. Many people might already know me from NDMVP Nasik, and also I am a founder and owner of Digital Trends and Men. So, helping businesses has been my key to in my career, and have I have done like almost more than 50 plus projects with many types of businesses and help to meet their goals. And with me today is Avdesh. Um, I love the love for electronics has brought him to a place that he has also been known as the nanotech guru, and he's done his BTech MTech in ECE, and he's also the owner and the founder of Pro Innovation Education, and he has also joined in the Indian Mauritius government project in Mauritius. He was in Mauritius for an year, and he has also done 2 projects with DRDO. Also trained more than 700 students for IIT, as he was very successful in his career. So maybe he'll let you know what he has done in his career so far. All right. So I'll just hand over the screen to him. Of this, sir, can you please? Yeah, thank you, Rakesh sir. Thank you so much. Okay, as Rakesh has told you, I'm Avdesh Kumar. So, ऐसा कुछ नहीं है nano tech guru and all, but it was love for the electronics that I was having when I just enrolled in the electronics and telecommunication engineering. Okay, so basically what I have done and what I am doing right now, I am the founder of Pro Innovation Academy, which is in Nasik only. Then at the same time, I'm working as senior project engineer in Sigma Power Tech Private Limited, which is Delhi-based company. Uh, I have done many projects in many various fields actually. तो आपको इन सब चीजों के बारे में भी पता नहीं होगा, ठीक है? So there are many fields in electronics that we might not be knowing. One of them is VLSI. That VLSI के अंदर हमारे पास कितना स्कोप है, क्या क्या चीजें हम VLSI में सीख सकते हैं और आगे जाके इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है. So first is VLSI. Then second is BMS, that is Building Management System. आप लोग में से कुछ लोगों ने इसका नाम सुना होगा एंड मैनी ऑफ यू वर देयर विल बी देयर जिन्होंने इसका नाम अब तक नहीं सुना होगा. इस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम आज के टाइम में जितने भी मॉल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स है, एवरीवेयर बीएमएस उसमें कंपलसरी होता है. तो इन दोनों फील्ड्स के अंदर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही चाहिए होता है. इनफैक्ट वीएलएसआई जो होता है ये सिर्फ एक ऐसा फील्ड है, कोर फील्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो मेनी प्लेसेस अगर हम जाते हैं बाकी कंपनीज में, तो वो पूछते हैं कि आप क्या इलेक्ट्रिकल से हो या इंस्ट्रूमेंटेशन, तो उन्हें जॉब जल्दी मिलता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट. बट अगर वीएलएसआई फील्ड में आप जाते हो तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को ये पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है देन ओनली वो आपको एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज नहीं करते. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वीएलएसआई जो होता है ये कोर फील्ड है हमारे लिए. सिमिलरली देयर इज वन फील्ड कॉल्ड सीबीआरएनई. इसके बारे में भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा. दैट इज केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल. इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. अगर रेडियोलॉजी या फिर वी कैन से रेडियो वेव्स हैं या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उससे किस तरह से हम बच सकते हैं. एंड देयर आर मेनी मोर. ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए. तो इसमें से एक हम आज देखने वाले हैं, दैट इज वीएलएसआई. तो बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन वीएलएसआई ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद वीएलएसआई. अगर आप लोगों को कहीं पे कोई क्यूरी होती है या फिर कोई डाउट होता है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. ओके, और यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू. यू कैन interact with me.
हाय, आई हैव क्लोज द ओके चैट बॉक्स। सो अगर मैं एक लिंक भेज देता हूँ, अगर कुछ बड़ा डाउट रहा तो फिर वो लिंक पे आप भेज देना, बाकी उसके बाद हम कवर कर लेंगे वो पॉइंट। ऑलराइट। ओके, ओके। थैंक यू सर, मे बी सबको समझ में आ चुका है। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज वीएलएसआई? वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल, दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि एरिया छोटे से छोटा हो और उसके ऊपर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो हम माउंट करने वाले हैं वो मैक्सिमम हो, मींस ज्यादा डेंसिटी हो। दैट इज नथिंग बट वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो अगर आप वीएलएसआई फील्ड के अंदर एंटर करते हो, वीएलएसआई में अगर आपको इंटरेस्ट होता है, आप इसमें करियर करना चाहते हो, तो उन सब चीजों के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो वीएलएसआई में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। दे आर बेसिकली 5 फील्ड्स इन वीएलएसआई। अगर आप वीएलएसआई इंजीनियर बनते हो तो आपके पास 5 डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन इंजीनियर। ओके, मतलब अगर कोई क्लाइंट है वो बोलता है मुझे कोई आईसी चाहिए या फिर कोई इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए, तो उससे रिक्वायरमेंट लेना कि आपको जनरली बेसिकली आपको उसमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आपके, मतलब जो क्लाइंट के साथ डील करता है एप्लीकेशन लेयर पे, ठीक है, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जो कि इजीली चीजों को समझ सकता है और सामने वाले को समझा सकता है, वो बेसिकली इस फील्ड के अंदर जाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन इंजीनियर। देन सेकंड आता है चिप डिजाइन इंजीनियर। ओके, नाउ अब ये अगर हम बात करते हैं चिप डिजाइन, इसका मतलब चिप इज नथिंग बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं, आईसी जो यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। आपने यूज किया होगा बेसिकली ओपेम्प आईसी आपने यूज किया है, उसके बाद 7805 या फिर 78 सीरीज या फिर वी कैन से 79 सीरीज आपने यूज किया है। तो ये जितनी भी आईसीज मैन्युफैक्चर होती हैं, वो जो ब्लैक कलर की आपको दिखती हैं, वो बेसिकली उसे चिप बोला जाता है। तो उसका डिजाइन जो होता है, किस तरह से डिजाइन करेंगे उसको, मतलब बेसिकली इट इज ग्राफिकल डिजाइनिंग। इसमें क्या होता है, आपका सिमेटिक वगैरह ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकल डिजाइनिंग होता है। तो ये होता है चिप इंजीनियर के काम होता है। देन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 70% इंजीनियर्स उसी फील्ड में होते हैं और रिक्वायरमेंट जिसकी सबसे ज्यादा होती है, दैट इज वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन इंजीनियर। वेरिफिकेशन इंजीनियर अगर आप इस फील्ड में एंटर होते हो तो आपका इनिशियल पैकेज जो होता है इंडिया में वो 10 to 12 लाख होता है, अगर आप वेरिफिकेशन इंजीनियर के बेस पे। इसमें बेसिकली आपको जो मेन चीज चाहिए होती है, दैट इज कोडिंग। आपको कोडिंग जो है, कोडिंग जो स्किल है आपकी, वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। कौन सी वाली कोडिंग? हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या फिर वेरीलॉग, जो हम लोग वीएलएसआई के अंदर आगे पढ़ेंगे और जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इंजीनियर अगर आप बनते हो, मेरा एक फ्रेंड है, अभी क्वेलकम कंपनी है उसके अंदर, ही इज गेटिंग 13 lakhs पर एनम। ओके, तो ये वीएलएसआई का जो सेशन खत्म होगा पूरा, जब हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, उसके बाद आई विल ब्रिंग हिम हियर। तो वो अपने बता सकता है चीजें कि वेरिफिकेशन इंजीनियर का क्या रिक्वायरमेंट है और कैसा एनवायरनमेंट होता है, क्या काम करना पड़ता है, लाइक दैट। लेकिन ये एकदम बूस्ट, ये बोल सकते हो आपकी आज के टाइम में जो रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा, वो वेरिफिकेशन इंजीनियर की होती है। अगर आप वीएलएसआई इंजीनियर बनते हो तो 70% जो वैकेंसीज होती हैं वो वेरिफिकेशन इंजीनियर के लिए होती है, और सबसे ज्यादा पैकेज जो होता है वो भी इसी के अंदर मिलता है। उसके बाद आपका आता है कैड इंजीनियर इसी के अंदर। कैड इंजीनियर क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब जो आपके टूल्स होंगे कंप्यूटर के अंदर जिसके बेस पे हम सर्किट बना रहे हैं, जो भी है उनको मेंटेन करना, उनको मैनेज करना, कोई अपडेट आया तो उन टूल्स को अपग्रेड करना, वो सब चीजें होती है कैड इंजीनियर की। एंड लास्ट इज सेल्स इंजीनियर। अगर आपने कोई आईसी या चिप बनाई है तो उसको फिर सेल करना है सामने कंपनीज में, किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे, इस चीज के बाद जो मार्केटिंग करेगा, बेसिकली इट इज सेल्स एंड मार्केटिंग इंजीनियर। तो ये 5 फील्ड होते हैं वीएलएसआई के। तो ऐसा नहीं है कि वीएलएसआई सिर्फ आपके पास एक सब्जेक्ट है, हम लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, लेकिन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं, दैट इज वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्योंकि हमें पता है डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड हम बार बार बात करते हैं, इट इज डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटाइजेशन हो रहा है। जहां भी डिजिटल वर्ड आता है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग डिजिटल सर्किट, और डिजिटल सर्किट्स यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट।
अगर हम बात करें, अच्छा आईसी के बारे में पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आईसी क्या है। देखो, आपने जैसे मैंने आपको दो चार चीजें बताई हैं कि 7805 आपने आईसी देखी होगी, 7809 ये सब आईसी देखी है, उसके बाद आपने ओपेम्प आईसी देखी। तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, या फिर एंड गेट होता है आपका, एंड गेट है, और गेट है, नैंड गेट है, इन सब की भी डिफरेंट आईसीज आती है। ठीक है, तो ये जितनी भी आईसीज होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली समझ लो ये एक आईसी हो गई आपकी। तो आईसीज के अंदर बस आपको पिंस दिखाई देती हैं, राइट। आईसी की जब हम बात करते हैं, हम 8051 को भी नहीं भूल सकते, या फिर पीक माइक्रो कंट्रोलर जो आपने यूज किया, या फिर आर्म माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर होते हैं सभी क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि इंडिया में आईसी फैब्रिकेशन का एक भी प्लांट नहीं। दैट मीन्स हमें अगर कोई आईसी डिजाइन करानी होती है, हम सिर्फ रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन सब कुछ बना के प्रिपेयर करके इंटरनेशनल मार्केट में सेंड करते हैं, फिर वो लोग हमको उस कंट्री से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है आईसी। तो आईसी का एक भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया के अंदर नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी सुनने में आया था कि बेंगलोर में एक इसका लैब सेटअप होने वाला है, और एक कंपनी वहां पे आने वाली है, जो कि इंडिया के अंदर भी इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वो स्टार्ट हो जाएगा, वीएलएसआई इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बड़ा फील्ड होगा, वो बहुत सारी वैकेंसीज एंड ऑल यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, अब आप ये सब सोच रहे होगे कि वीएलएसआई कर रहे हैं, सब कुछ है, पढ़ तो लेंगे, बट क्या पैकेज कितना क्या है। तो अगर एवरेज मैं बात करूँ, जैसे 5 डिफरेंट फील्ड्स थे, अगर उसके हिसाब से हम बात करते हैं, अगर आप इंडिया में जॉब लेते हो तो आपको एवरेज पैकेज जो होता है, इट इज नियर अबाउट 6.5 लाख पर एनम। ये एवरेज पैकेज है जो कि इंडिया के अंदर ऑफर किया जाता है। बट अगर आप यूएसए वगैरह में अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रहते हो यूएसए अप्लाई नहीं कर सकते। यूएस में काफी कंपनीज हैं जिनको वीएलएसआई इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यूएसए में भी अप्लाई कर सकते हो। या फिर वो क्या करते हैं, फ्रीलैंसिंग पे भी काम देते हैं। अगर आपकी कोडिंग स्ट्रांग है, आप इंडिया में ही रह रहे हो, जैसे कि राकेश सर हैं, ये काम करते हैं ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी के लिए, बट ये है इंडिया में, तो उन्होंने क्या किया, वो इनको सब काम देते हैं, यहाँ पे करते हैं, क्योंकि ये उसके अंदर परफेक्ट है, राइट, प्रोफेशनल है। तो वैसे ही होता है, अगर आप वीएलएसआई में कोडिंग सब सीख जाते हो, तो आप फ्रीलांसिंग एंड ऑल सब कुछ कर सकते हो, आप यहीं से हैंडल कर सकते हो। तो वो लोग यहाँ पे भेजते हैं हमारे पास इंडिया में, तो फिर हम लोग उनको करके रिटर्न देते हैं। तो अगर यूएसए में हम ज्वाइन करते हैं, तो इसका जो एवरेज पैकेज होता है, इट इज नियर अबाउट $81,000 पर एनम। 81,000 अगर मैं अभी कन्वर्ट करता हूँ आज के रेट से, तो इट इज नियर अबाउट 60 लाख पर एनम। ये वीएलएसआई इंजीनियर की पावर होती है, इतना मिलता है उसको, क्योंकि वहां पे फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं यूएसए के अंदर, इसलिए वहां पे आपका पैकेज भी जो होता है वो उसी हिसाब से मिलता है। बात करते हैं इंडिया में कंपनीज की, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको वीएलएसआई के बारे में या फिर वीएलएसआई के बेस पे जॉब मिल सकता है। सैमसंग है, सबको पता है, तो सैमसंग के फोन्स आए या वॉशिंग मशीन है, जो भी है, सब कुछ जो भी ऑटोमेशन हो रहा है उसके अंदर आईसी पक्का यूज होती है। आईसी के लिए उनका एक डिफरेंट फील्ड होता है, डिफरेंट ऑफिस में एक उनका सब डिवीजन होता है जो कि इन सब चीजों को हैंडल कर रहा होता है। तो सैमसंग है, इंटेल प्रोसेसर आपको सभी को पता है। उसके बाद क्वालकॉम कंपनी है, क्वालकॉम। देन एटमेल, एटमेल आपने सुना होगा, जो आप माइक्रो कंट्रोलर्स यूज करते हो उनके ऊपर लिखा होता है एटमेल, एटमेल ने बनाया होता है, राइट। देन एक टीआई, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोचिप भी आपको पता है, जो पीक माइक्रो कंट्रोलर है वो माइक्रोचिप बनाता है। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर भी जो कि वीएलएसआई इंजीनियर्स की डिमांड करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को इसके बारे में पता नहीं होता, ना ही कॉलेज में बताया जाता कि वीएलएसआई के अंदर इतना बड़ा स्कोप है। ठीक है, तो ये सब बातें थी कि वीएलएसआई के अंदर कितना स्कोप है, क्या है क्या नहीं। मार्केट की बात की हमने, इंडस्ट्रीज की बात की है। अगर इसके अंदर किसी को कोई इश्यूज हैं या कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो अभी आप पूछ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, और आपको एक गूगल फॉर्म दिया होगा उसको आप फिल कर सकते हो, अगर इसके बेस पे कुछ भी है। अदरवाइज वील गो इनटू द सब्जेक्ट। राकेश सर, किसी की कोई आया, आपको डाउट है किसी को कोई? नहीं, कुछ डाउट नहीं है, सब सब परफेक्ट है सबको। ऑलराइट। ओके, तो
एक बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं कि वीएलएसआई में एक्चुअली क्या होता है, क्या चीजें है, इसके अलावा और कौन कौन से सर्किट्स होते हैं। आईसी की बात करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आईसी से, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब ये जो 3 days का सेशन है, इसमें हम लोग पहले वीएलएसआई का बेसिक्स देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या डिजाइन होती है, किस तरह से। सबसे पहले हम इसके अंदर एंटर करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, फिर जो कि आपको चाहिए हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो कि इंडिया में यूज होती है। अगर आप फॉरेन यूएस में जाते हो तो वेरीलॉग यूज होता है, और इंडिया में वीएचडीएल यूज होती है। ओके, तो जस्ट एक देख लेते हैं कि कितने तरह के आईसीज होते हैं। तो आईसी में बेसिकली क्या होता है ना, वो जो ब्लैक आपको दिखता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। आईसी के अंदर इट कंप्राइजेज ऑफ ट्रांजिस्टर्स, जिनको कनेक्ट करने का काम होता है हमारा, किसको किस तरह से कनेक्ट करें और उसको उस तरह से वर्क करवाएं। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब ट्रांजिस्टर। तो आईसीज की बात करें तो पहला होता है आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड आईसीज, जिसमें हंड्रेड लेस देन 100 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अगर 100 से कम ट्रांजिस्टर होते हैं देन उसे हम बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर उसमें we will say medium scale integrated circuit if we are having 100 to 300 transistors. Okay, similarly large scale integrated circuits जिसमें होते हैं आपके 100 से 3000, we can say 3000 से 30,000 तक कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं आपके लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। फिर आता है नेक्स्ट आपका वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें 30,000 से लेके 10 मिलियन इतने ट्रांजिस्टर्स तक रहते हैं, जिसके ऊपर हमें अभी काम करना है। और इससे भी बड़े सर्किट्स होते हैं जिन्हें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, यूएलएसआई, उसमें मोर देन 10 मिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। अच्छा, और एक चीज आपको बता दूं मैं कि आप जैसे 3rd और 4th ईयर के स्टूडेंट्स हो गए कुछ, तो जो आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो वो बेसिकली एम्बेडेड में बनाते हो या हार्डवेयर बेस्ड बनाते हो, तो आप लोग वीएलएसआई में भी बना सकते हो। देखो, आपके कॉलेजेस में एफपीजीए और सीपीएलडी इनमें से कोई ना कोई किट पक्का होती है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एक प्रोग्राम लिखना है और उसको डंप करने के लिए कॉलेज आपको हेल्प करता है। आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाना है, दैट इज आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी है, बाकी हर चीज कॉलेज प्रोवाइड करता है और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है 4th ईयर का। कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना किसी को, ना आपको कहीं बाहर जाना है, सिर्फ अगर आप वीएलएसआई का प्रोग्राम कर लेते हो देन यू कैन डू दैट। ओके, सो वील हैव अ 5 minute ब्रेक। ठीक है, 5 to 10 minutes ब्रेक होगा, देन वी विल जॉइन अगेन। बिफोर द ब्रेक एक क्वेरी आया है, समवन हैज आस्क्ड दैट Okay. जो आपने पैकेज बोला है यूएसए का, तो क्या कंपनी से बेचते हैं कि वहां पे जाके रह के डिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होके उतना पैकेज मिलता है? वहां पे जाके रहने के बाद यस, मतलब लाइक क्वेरी ऐसी थी कि अगर यहाँ से हमें कोई कंपनी के थ्रू भेजता है तो दे टेक केयर ऑफ आवर स्टे एंड द फूड एंड अकोमोडेशन, राइट? तो वहां पे वैसे मिलता है कि वो पैकेज इंक्लूडेड है कि इफ यू स्टे इन यूएसए नो, परमानेंटली? एक्चुअली इट इज एक्चुअली कि जब आप परमानेंटली आप जाते यूएस में अप्लाई करते हो, अभी आपके बीटेक कर लिया या फिर एमटेक जो भी करते हो आप, उसके बेस पे अगर आप अप्लाई करते हो या फिर अपने इंडिया में काम किया 1-2 साल, आपने सीखा वीएलएसआई के बारे में सब कुछ, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव आपको सब पता चल गए, तो आप क्या कर सकते हो फॉरेन में, जहाँ पे यूएसए में अगर आप अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद आपको जब वो वहाँ पे हायर करेंगे तो फिर इस प्राइस पे हायर करते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप वहाँ पे कितने साल के लिए जाते हो, कैसे काम करते हो, बट आपको वहीं पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनी वहाँ पे आपको नहीं भेजेगी, क्योंकि यूएसए वाले खुद अपना काम जो है वो इंडिया में भेजते हैं करने के लिए, जो वीएलएसआई का बेसिक प्रोग्रामिंग एंड ऑल है। सो उन्हें भी राइट, रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो इंडिया में लोगों को डिपेंडेंसी ना रहे इंडिया के ऊपर, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि यूएसए में ही होल्ड करें उसको। राइट, राइट, राइट। ओके, सो एनी मोर क्वेरीज? मैंने चैट बॉक्स भी ओपन किया है जस्ट, सो एनी मोर क्वेरीज फॉर नेक्स्ट 2 minutes?
कोई क्वेरी देखो रहेगा ब्रेक के तो बाद हम लोग फिर सीधे सब्जेक्ट में जाने वाले हैं, तो अगर आपको यस कोई भी डाउट है कि और क्या क्या चीजें हैं स्कोप इन वीएलएसआई है, तो यू कैन आस्क। यस। फॉर्म में भरना है तो फॉर्म में भर दो, या फिर डायरेक्टली चैट बॉक्स ओपन किया है जस्ट मैंने, तो उसमें भरना है तो उस पे भरो। इट्स योर चॉइस। What ओके, about व्हाट Anamika is अबाउट, asking, what about electrical engineering? ओके ओके, लुक बेसिकली अगर आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हम ये बात करते हैं कि सिर्फ आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही लिया है, तो आपको उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता है। अगर आप वीएलएसआई के लिए जाते हो कंपनीज में, तो उतना प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर आपके पास वीएलएसआई सब्जेक्ट है, आपने वीएलएसआई के बारे में सीखा है, और आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो, या आपने इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट किया वीएलएसआई के अंदर, और वहां पे आके जब आप रिज्यूमे सेंड करते हो और वहां पे उन्हें दिखता है प्रोजेक्ट में कि आपने वीएलएसआई पे काम किया है या फिर कोई कोर्स किया है वीएलएसआई में, ऐसा कुछ भी, तो वो आपको एंटरटेन पक्का करते हैं। बिकॉज आप उनको डबल चीजें मिल जाती हैं कि आप इलेक्ट्रिकल के एस्पेक्ट्स भी देख सकते हो एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स के भी। तो बेसिकली उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरा वीएलएसआई। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के लिए एकदम ही क्लोज है, बट हाँ, अगर आप वीएलएसआई में आपने कुछ किया है, आपके पास सब्जेक्ट था, आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि हमारे को वीएलएसआई का नॉलेज है, तो यू कैन ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, तो आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो उसको। All right. Anyone more doubts? Does it punter Shahil Iqbal? Okay. What to study Does it to VLSI study other than, BLSI other than in IITs? या बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में कि सिर्फ आईआईटीज जो है उनके पास जाके ही पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है। इट्स नॉट नेसेसरी। आज के टाइम में क्या होता है, वीएलएसआई के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। देखो क्या होता है ना, अगर वो आईआईटीज में जाते हैं जब प्लेसमेंट के लिए, तो वहां पे सिर्फ जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज की बात करें, तो वो लोग वहां पे सिर्फ उनको अप्रोच करते हैं, क्योंकि उन्हें पैकेज भी उसके अकॉर्डिंग देना होता है। बट उसके अलावा देयर आर मैनी मैनी कंपनीज जो कि प्रेफर करती हैं कि हमें फ्रेशर्स चाहिए, और वो भी कॉलेज से जिन्होंने किया हो, कहीं से वीएलएसआई का नॉलेज हो, और जिनको थोड़ा सा ट्रेन करके, दैट इज ग्रेजुएट ट्रेनीज जो होते हैं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर जो होता है वो सब, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ आईआईटी में जाओगे तभी वीएलएसआई में स्कोप है, ये सब बोलने वाली बात है। और इसके अंदर जो है ना, आपका जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे आपने एक बार ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी में, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद ग्रोथ आपका बहुत ही ड्रास्टिकली होता है। मतलब आपका पैकेज भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है, और आप स्विच इजीली कर सकते हो। वीएलएसआई इंजीनियर्स की आज के टाइम में बहुत डिमांड है, जस्ट नो दैट। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर किसी फील्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है वीएलएसआई, और आने वाले टाइम में ये बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। जितनी भी मोबाइल कंपनीज है सब आईसीज यूज करती हैं, सबके अंदर ये फील्ड होता है जिनको वो चाहिए। Also, I would like to ओके, add up with of this sir's point. जो न्यू आत्मनिर्भर भारत चालू है, उसके अंदर जो नए कंपनीज बनेंगे, सो सभी टेक कंपनीज अभी जो कि प्रोसेसर्स बनाते हैं, जो कि सर्किट्स पे काम करते हैं, वो होते हैं, टू बी वेरी फैक्ट एंड जेन्युइन, इट्स ऑल अबाउट चाइना। सो अगर ये सब अगर इंडिया में आता है, सो द ग्रोथ ऑफ वीएलएसआई इंडस्ट्री इन इंडिया इज ट्रेमेंडस। ऑलरेडी वियतनाम में ये काफी ग्रोथ हो चुका है जब से सैमसंग वियतनाम गई है, बट इंडिया इज नथिंग बिहाइंड। सो यहाँ पे काफी सारा प्रोग्रेस का टाइम रहेगा इंडिया में, क्योंकि आत्मनिर्भर ओरिएंटेशन में सब कुछ चेंज होने ही वाला है। इज दैट राइट ऑफ दिस सर? यस यस एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपना बेस बनाने वाली हैं, सब चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इंडिया में ऐसी कई सारी कंपनीज जो कि आने वाली हैं आने वाले टाइम में। और जितना मुझे पता है इंडस्ट्रीज के बारे में, जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है वीएलएसआई इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मेरा राइट, काम जो होता है इंडस्ट्रीज के साथ ही है सारा। राइट। So any more doubts, anybody, before we dig into directly to the syllabus and study oriented in the next session? किसी को कुछ डाउट? Come on, be free. All right, so let's end this session here, and we'll meet again at 3:40 sharp for the next session. All right,
सो सब आना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि डायरेक्टली हम प्रोग्रामिंग एंड ऑल डिग इन करेंगे। जो एक बेसिक इंटीग्रेशन है जैसे अवधेश सर चालू कर देंगे, एक VLSI में कैसे स्टार्टिंग में क्या क्या लगता है, वो सब अवधेश सर एज पर थिंग्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम वो चालू कर देंगे। ठीक है, सो वी विल मीट बिल्कुल, एट। जैसे आईसीज के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड्स जो भी हैं, उसके बेस पे आप किस तरह डिजाइन करते हो, प्रोग्रामिंग क्यों करते हो और किस पार्ट में प्रोग्रामिंग करते हो, किसी भी राइट, जो भी हम प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसके अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है और क्यों करनी है, उसके अंदर एक एक सेंटेंस, एक एक ग्रामर, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, यहाँ पे भी आपका लैंग्वेज सीखनी है तो क्या वोकेबुलरी को क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद अगर ग्रामर है तो उसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे एकदम इजी वे से, एकदम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करेंगे। राइट। सो meet you all at 3:40 sharp। शार्प आ जाना सब। ऑलराइट, बाय बाय। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, अभी आप लोग सभी अपने आप को अनम्यूट भी कर पाओगे, तो अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ओके, अदरवाइज अपने आप को म्यूट करके रखना है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ VLSI। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों हम लोग VLSI पढ़ते हैं, क्यों हमें VLSI सर्किट की जरूरत है, ये सारी चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इम्प्रूव्ड सर्किट स्पीड, राइट। आज के टाइम में अगर आप मोबाइल खरीदने के लिए भी जाते हो तो आप देखते हो किसके अंदर कितना प्रोसेसर है, किसके अंदर कितनी क्लॉक स्पीड है, मतलब कौन कितना ज्यादा फास्ट है। फोन हैंग होता है तो आप सोचते हो कि ये बहुत बेकार फोन है, ये हमें लेना नहीं है। तो ये सारी चीजें, दैट मीन्स जो स्पीड होती है सर्किट स्पीड, इट शुड बी फास्टर। so that's why that's the first objective of VLSI। VLSI सर्किट्स में आपको जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्टर मिलती है। सेकेंड, इट इज कंज्यूम्स लेस पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का बेसिकली काम क्या होता है ना, दो ही होता है, सर्किट की स्पीड बढ़ाओ और दूसरा काम होता है कि पावर कम से कम यूटिलाइज करे वो। ये दो मेन काम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के या फिर कोई भी इंजीनियर के। और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जब आप बात करते हो, बैंडविड्थ की बात करोगे, स्पीड की बात करोगे, नॉइस की बात करोगे, दैट इज दिस थिंग ओनली, दैट इज कि आपको पावर लेस कंज्यूम हो और दूसरा सर्किट की स्पीड बहुत ज्यादा हो। थर्ड जो चीज आती है दैट इज जितना छोटे से छोटा हो सर्किट उतना बेटर है, दैट इज लेस एरिया, ठीक है। पहले हमारे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप टाइप जो कैथोड रे मॉनिटर्स आते थे, राइट, तो वो कैसे बल्की होते थे, टेलीविजन होते थे वो बहुत बल्की होते थे, तो वो अब कोई नहीं रखता। सबको क्या स्लिम एंड ट्रिम जो अभी एलईडी टीवीज आई हैं या फिर एलसीडी मॉनिटर्स हैं, एलईडी मॉनिटर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स जितना कम एरिया होगा उतना बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो VLSI में जो है ये तीन टारगेट आपको अचीव करने होते हैं, दैट इज इम्प्रूव सर्किट डिजाइन, कंज्यूम लेस पावर एंड लेस एरिया। नाउ प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, आपके कॉलेज में किसी ने प्रीवियस कोई भी प्रोजेक्ट किए हो एम्बेडेड सर्किट से रिलेटेड, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप VLSI में कर दो तो वो आपका एक नया प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि उन्होंने एम्बेडेड सिस्टम जब किया तो उसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर यूज किया, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया। बट अगर आप VLSI में करोगे, FPGA पे यूज करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों चीजें आपको इम्प्रूव्ड मिलती हैं। दैट्स वाई आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो अप्रूव हो जाएगा एंड बेटर होगा बाकी से। इसके बेस पे आप इसमें एमटेक मास्टर्स का भी अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा मिलने वाली है और इसके अंदर काम बहुत कम हुआ है। जितने प्रोजेक्ट वगैरह हैं VLSI पे नहीं होते। आप अपने कॉलेज में देखो अगर, तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने VLSI के ऊपर प्रोजेक्ट किया हो। तो मेगा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट जो भी आप इजीली इसमें बना सकते हैं, इनफैक्ट आप रिसर्च भी कर सकते हो इसी फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरह क्या डिजाइन फ्लो होता है। तो डिजाइन फ्लो से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हो गए जो कि हमें पता चल गए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिजाइन फ्लो की किस तरह से डिजाइन किया जाता है VLSI सर्किट। मतलब अगर कोई भी आईसी बनानी है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना है, तो वो किस तरह से बनाया जाता है। डिजाइन फ्लो स्टार्ट होता है, पहला आपका आता है रिक्वायरमेंट।
रिक्वायरमेंट। जब भी आपको कोई सर्किट बनाना है तो पहले आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि इस सर्किट से हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या इनपुट देंगे तो हमें क्या आउटपुट मिले। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उन सबको हम एक जगह नोट डाउन करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड रिक्वायरमेंट। तो ये बेसिक स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट डिजाइनिंग का। ठीक है, एग्जाम में भी इसके बेस पे आपका क्वेश्चन आता है, डिजाइन फ्लो के बेस पे, डिजाइन फ्लो को एक्सप्लेन करो पूरी तरह से। 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है इसके ऊपर। तो विल सी रिक्वायरमेंट। तो रिक्वायरमेंट सभी को क्लियर है? अभी बोल सकते हो आप लोग? यस सर। ओके, बाकी सब सो गए क्या? उनको पता है, वो तुझे टेस्ट कर रहे हैं। ओके, एनोटेशंस मत करो नाउ प्लीज। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट, देन सेकंड जो आता है इसमें दैट इज डिजाइन स्पेसिफिकेशन। डिजाइन स्पेसिफिकेशन मतलब आपको डिजाइन तो करना है, आपने देख लिया मेरे को इनपुट ये चाहिए, मुझे आउटपुट उसका ये मिलना चाहिए, लेकिन कितना देर में मिलना चाहिए, मतलब कितना आपका फास्ट होना चाहिए सर्किट, किस रेंज में मिलना चाहिए, मेरा आउटपुट जो है क्या मुझे 0 से 5 वोल्ट में चाहिए या मुझे 0 से 10 वोल्ट में चाहिए। तो ये जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो सभी यहाँ पे आएंगे। कितना करंट कंज्यूम करना चाहिए, कितना पावर रिक्वायरमेंट होगा उसका, ये सारी चीजें। सो इट इज सेकंड स्टेप, दैट इज डिजाइन स्पेसिफिकेशन। आपको इसी तरह से ये सब ब्लॉक में बनाने पड़ेंगे कि पहला रिक्वायरमेंट, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, फिर सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थर्ड आता है इसमें डिजाइन फॉर्मुलेशन। डिजाइन फॉर्मुलेशन, अब हमें क्या क्या पता चल गया? रिक्वायरमेंट पता है, हाँ इनपुट ये चाहिए, आउटपुट ये चाहिए, ये पता चल गया कितनी देर में हमें आउटपुट मिलना चाहिए, उसका पावर रिक्वायरमेंट कितना चाहिए। उसके बाद आता है डिजाइन फॉर्मुलेशन। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसमें हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम या फिर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखते हैं, ये दो चीजें। ब्लॉक डायग्राम में मतलब क्या होगा कि आपने बोला कि मुझे ये आईसी चाहिए, यहाँ से मेरे दो इनपुट्स हो, यहाँ से एक आउटपुट आ रहा हो, और उसमें आपने बोल दिया कुछ भी इनपुट है ए बी एंड आउटपुट इज वाई, और आपने बोल दिया मुझे ये रिक्वायर्ड है ना। इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, इसके अंदर क्या पता यहाँ पे कोई ब्लॉक्स हो, फिर ये यूज करूंगा, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल कोई सोर्स होगा यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये होता है ब्लॉक डायग्राम। मतलब हम एक फ्लो बनाएंगे डिजाइन का कि हम कहाँ से स्टार्ट होंगे और किस तरह हम एंड तक जा सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द डिजाइन फॉर्मुलेशन, कि आपने एक डिजाइन बना लिया, कि बेसिक रफ डिजाइन बोलते हैं इसको, कि आपने रफ डिजाइन बना लिया कि इस टाइप से मुझे काम करना है। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ स्टेप आफ्टर दिस, दैट इज डिजाइन एंट्री। डिजाइन एंट्री मतलब आपने सब कुछ कंपोनेंट्स अंदर रख दिए, सब कुछ कर दिए, अब उनको वर्क कैसे कराना है। ब्लॉक डायग्राम्स आपस में जुड़ेंगे तो किस तरह उनका वर्किंग, मतलब उन्हें वर्क कराना है। दैट मीन्स हमें उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है। डिजाइन एंट्री में क्या होता है, स्कीमेटिक बना लिया हमने, एक जैसे ब्लॉक डायग्राम बना लिया, अब उसके अंदर हमें उसको प्रोग्राम करना है या फिर उससे काम कराना है ब्लॉक डायग्राम। सो दैट इज नथिंग बट पॉपुलर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज हम यूज करते हैं, दैट इज VHDL। VLSI HDL बोला जाता है इसको, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। तो दो ही तरह से, जो HDL होता है एक्चुअली, जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है आपकी, जो कि किसी भी हार्डवेयर को डिस्क्राइब करेगी, वो दो ही टाइप की होती है, एक VHDL और दूसरी होती है वेरीलॉग। ये दो तरह की होती है, जिनमें से वेरीलॉग हमें नहीं पढ़ना, इंडिया में यूज नहीं किया जाता है। वेरीलॉग मोस्टली यूज करते हैं यूएस। और अगर पॉपुलैरिटी की बात करें, दोनों की 50-50% पॉपुलैरिटी, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा यूज होता है जो कोई कम यूज होता है। बट हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, दैट वी विल बी स्टडीइंग VHDL। सिंटैक्स में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जो वेरीलॉग होता है ये थोड़ा सा C लैंग्वेज जो हम पढ़ते हैं उससे मिलता जुलता होता है, एंड VHDL जो होता है टोटली आपका हार्डवेयर पे बेस्ड रहता है। तो इट इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ये दो टाइप की होती है जिनमें से हम VHDL पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। अब ये जो हार्डवेयर को मुझे एक्सप्लेन करना है,
मैं इसको डिफरेंट वे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वो देखते हैं मतलब क्या है उसका, डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है होता है। लेट अस सी दैट। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, व्हाट वी कैन से, हाफ एडर या फुल एडर में से आपको कुछ याद है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा आपने। वो सेकंड ईयर में हो गया, अभी किसी को कुछ याद नहीं। कुछ उसका कुछ याद है क्या था, हाफ एडर फुल एडर, कोई इक्वेशन उसकी ऐसा कुछ? आकाश, वांना ट्राई? ओके, यस सर, हाफ एडर का ये बताए सर। ओके, गो अहेड। तब तक सर भी ड्रॉ कर रहे हैं। कुछ याद है? ओके, नो वरीज। ओके, लेट्स सी फुल एडर। इसका हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं अभी, ऐसे हम बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा डिजिटल सर्किट्स हम जो भी पढ़ेंगे ना, जो हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स पढ़े हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे उन्हीं की प्रोग्रामिंग करनी है, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको बताने वाला हूँ कि जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, जो ये हार्डवेयर मुझे दिख रहा है, मुझे इसको जो एक्सप्लेन करना है या फिर इसको प्रोग्राम करना है, तो मैं इसे कितने वे से कर सकता हूँ। ओके, नाउ लेट अस सी। इसमें फुल एडर में क्या क्या इनपुट होते थे? एक्स, वाई एंड सी इन। रिमेंबर? कुछ कुछ याद आ रहा है, धुंधला धुंधला? Yes, sir. और आउटपुट होता था सी आउट एंड हम, ये दो आउटपुट्स होते थे आपके, राइट? सो यहाँ पे हम क्या करते थे, सम के लिए एक्सप्रेशन लिखते थे। सम के लिए दैट इज एक्स, एक्स और विद वाई, एक्स और विद सी इन, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर सम। एंड सी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते थे, इट वाज एक्स वाई प्लस वाई सी इन प्लस एक्स सी इन, लाइक दिस। ओके, नो वरीज। ये क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, नो। इसके अंदर हमने देखो सम के लिए बना दिए, मतलब गेट्स है ना इसके अंदर। पहला एक्स और गेट दिखाई दे रहा है आपको, एक्स, एक्स और वाई, एक्स और सी इन, दैट मींस एक्स और गेट यूज किया हमने बीच में वहां पे। यस एक्स और ऑपरेशन करने के लिए एक्स और गेट यूज करेंगे ना। यस Yes, sir. तो कैन आई राइट, इस तरह से मैं एक सर्किट बना दूं एंड यहाँ पे तीन इनपुट हो, एक्स वाई एंड सी इन। आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, सम। ऐसा कुछ होगा? यस यस। नो, यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ही सर्किट को हम कितनी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर कितनी तरह से उसको यूज कर सकते हैं, कितनी तरह से प्रोग्राम। आपने पढ़ा ना, बिहेवियरल, डिस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चरल एंड डेटा फ्लो, ये तीन नाम सुने आपने? Yes, sir. सुने ना? तो वही हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन में देखने वाले हैं यहाँ पे कि कौन सा किस तरह से एक्सप्लेन, मतलब क्या होता है उनका। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया ये। सी आउट के लिए अगर हम बनाए तो हम देखो, एक एंड गेट जहाँ पे हमें पता है एक एक्स होगा एक वाई होगा, राइट? उसके बाद दूसरा क्या है, वाई इंटू सी इन, वाई मैं यहीं से ले सकता हूँ, और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सी इन हो जाएगा। सिमिलरली एक और तीसरा गेट ले सकता हूँ मैं, एंड गेट, जहाँ पे एक सी इन है और दूसरा क्या है आपका एक्स। तो यहाँ से वी कैन से लाइक, और लास्ट में इन तीनों को ऐड करके हमें क्या करना है, ऐड कर रहे हैं मतलब वी आर ऑरिंग, तो ये आपको मिल जाएगा सी आउट। क्लियर है? अभी हम प्रोग्रामिंग Yes. में नहीं जा रहे हैं, डोंट वरी इतनी जल्दी, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, नाउ लिसन केयरफुली। ये जो हमने इसमें तीन चीजें देखी हैं, पहला ये जो कि सिर्फ ब्लॉक डायग्राम था, इनपुट और आउटपुट पता थे हमको, राइट? सेकंड ये जहां पे हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस पता है, एंड थर्ड पार्ट इज दिस जहां पे हमें क्या पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन से। क्लियर? तीन डिफरेंट पार्ट समझ में आए आपको? यस
किसी को कोई डाउट इसके अंदर कहीं पे भी? एनीवन? ओके, सो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे सिर्फ हमें इनपुट पता है और आउटपुट पता है। तो यहाँ पे हमें इस सर्किट का सिर्फ बिहेवियर पता है कि अगर एक्स वाई और सी इनको मैं ऐड करूंगा तो मुझे एक सम मिलता है और एक कैरी मिलता है, राइट? इतना ही पता है मुझे, हाँ या ना? इतना ही पता है ना कि जो सम होगा या फिर सी आउट आएगा वो क्या होगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एंड सी। तो जो इनपुट्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे कि हमें सिर्फ उसका बिहेवियर पता है। फुल एडर में सिर्फ हमें इतना पता है, अगर हमें 3 इनपुट्स देते हैं हमें ये आउटपुट मिलते हैं, इन तीनों का एडिशन होता है, वो सिर्फ इतना पता रहेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इट इज बिहेवियर। तो अगर हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसे हम बोलेंगे बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन बोला जाएगा उसे। क्लियर है पहला पॉइंट? यस और नो? मतलब सिर्फ आपको इतना याद रखना है, बिहेवियर में सिर्फ आपके पास 2 चीजें होती हैं, इनपुट एंड आउटपुट, और बीच में ये ब्लैक बॉक्स होता है जिसका हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या है, ठीक है? सो इट इज बिहेवियर। सेकंड इज जहां पे सम दिया हुआ है और सी आउट कैरी दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ डायरेक्टली जब प्रोग्राम करूंगा तो मैं वहां डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन को यूज कर सकता हूँ, यस और नो? यस सर। यस। इसका मतलब ये सम और सी आउट क्या बता रहे हैं कि हमारा डेटा कैसे जाने वाला है, मतलब सम के अंदर एक्स और वाई, एक्स और सी इन होने वाला है और सी आउट के लिए एंडिंग होने वाला है। तो जब इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम माउंट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं डेटा फ्लो स्ट्रक्चर, डेटा फ्लो डिस्क्रिप्शन या फिर डेटा फ्लो स्ट्रक्चर। आ रहा है भी समझ में? और जो थर्ड वाला ये क्या होगा कि ब्लॉक डायग्राम जो था, ब्लैक बॉक्स था, उसके अंदर इनसाइड द ब्लॉक डायग्राम, राइट? इट इज टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमेटिक, वी कैन से, मतलब ये जो हमने बनाया है सीमेटिक, इसका हम टेक्स्ट में लिखेंगे, ठीक है? तो इसको बोला जाएगा, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं देन इट इज स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन। तीनों डिस्क्रिप्शन सबको क्लियर है? अगर कहीं पे कोई डाउट है या फिर बिहेवियर कोई आपको और अलग से इसमें डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन? चले आगे, कोई डाउट नहीं है? ऑल क्लियर, ओके। सो हमने पहला देखा था रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन फॉर्मुलेशन, फिर हमने डिजाइन एंट्री देखा जिसपे हम ऑलरेडी अब तक बात कर रहे थे। आपने प्रोग्रामिंग कर ली, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो आईसी बनाना है, फैब्रिकेशन करना है, तो मैंने बोला इंडिया में तो फैब्रिकेशन प्लांट है नहीं, तो आपको कहाँ भेजना पड़ेगा? वो आउटसाइड इंडिया। तो यस क्या आप रिस्क ले सकते हो कि आपकी प्रोग्रामिंग सही है या गलत है, या वो काम करेगा कि नहीं? क्या आप डायरेक्टली भेज दोगे उसको कि मुझे ये करके दे दो? क्या पता आपके प्रोग्राम में कोई गलती निकली या फिर कहीं पे बिहेवियर में कोई गलती निकली, तो सर्किट ने काम नहीं किया, फिर तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा आपके लिए, यस और नो? तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड सिमुलेशन। सबको पता ही है सिमुलेशन? हम लोग सिमुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि अगर ऐसा इनपुट होगा तो ये आउटपुट मिल जाए कि नहीं, मतलब ये काम करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहे हैं। क्लियर है? आपने प्रोटियस यूज किया है? प्रोटियस Yes, हाँ sir. किया है ना? जो एम्बेडेड सिस्टम पढ़ते हैं, किसी ने मल्टीसिम किया होगा, किसी ने प्रोटियस यूज किया होगा। वो क्या सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हमें पता चलता है इनपुट क्या देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है? तो दिस इज नथिंग बट सिमुलेशन पार्ट। तो उसके बाद आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन से आपको पता चल जाता है कि मैंने जो किया है वो सब कुछ मेरा सही है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे, ये तो हमने जो सिमुलेशन किया ये तो अब सिर्फ सॉफ्टवेयर समझ रहा है, राइट? अब हमें क्या करना है कि जब मैं एक्चुअल में कंपोनेंट्स लगाऊंगा उसमें,
क्योंकि हमने जो डिजाइन किया है इसके अंदर एंड गेट, और गेट, एक्स और गेट, ये सब चीजें हैं, है कि नहीं है? यस यस और नो? यस। लेकिन जो हमारा एक्चुअल कंपोनेंट्स होंगे उसके अंदर जो गेट्स होंगे, गेट्स के अंदर क्या होते हैं? गेट्स किससे बनते हैं? ट्रांजिस्टर से। यस और नो? यस सर ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं ना गेट्स। यस सर तो जितने भी आपके गेट्स होते हैं वो सब ट्रांजिस्टर से बनते हैं, तो वी कैन से ट्रांजिस्टर्स को सप्लाई देने वाले हैं। ट्रांजिस्टर को वैसे एक्ट करना पड़ेगा, एनालॉग डिवाइसेस हैं। सो वी आर सेइंग, जब हम कंप्यूटर में यूज कर रहे थे 0101 समझ में आ रहा था, लेकिन जब एक्चुअल में हम हार्डवेयर पे जाएंगे तो पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएंगी। तो दोनों कंपैटिबल होने चाहिए कि नहीं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों चीजें कंपैटिबल होनी चाहिए। आपने कंपाइल किया प्रोग्राम को कभी? प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं C++, किसी भी लैंग्वेज में कंपाइल किया आपने प्रोग्राम? यस कंपाइल का मतलब क्या होता है? एक लैंग्वेज को वी कैन से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, जो सॉफ्टवेयर में हमने जो लाइंस लिखी है, उन लाइंस को हार्डवेयर को भी तो समझना है। तो उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो काम होता है दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस, दैट इज लॉजिक सिंथेसिस। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है दैट इज लॉजिक सिंथेसिस, which is nothing but similar to compiler which converts the language to component level। ये component level पे लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे हार्डवेयर को समझ में आए भाषा, उसको समझ वो करेगा। मतलब ट्रांसलेटर होता है ना, समझ लो कोई जापानीज से आपको बात करनी है तो एक ट्रांसलेटर चाहिए आपको, वो जापानीज में उसको बताएगा, वो आपको हिंदी या इंग्लिश में बताएगा, तभी आप समझ पाओगे। वही मतलब होता है सिंथेसिस का। क्लियर है पॉइंट? यस सर ना उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? अब लॉजिक सिंथेसाइज कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से पोस्ट सिंथेसिस सिमुलेशन। जब हमने एक बार लॉजिक बना लिया, सिंथेसाइज कर लिया, मतलब हमने फिर से कन्वर्जन भी देख लिया है, लेकिन एक्चुअल में वो हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, वो हमें पहले से चेक करके रखना है। तो हम क्या करेंगे? फिर से उसको सिम्युलेट करेंगे। ठीक है, ये सिमुलेशन के बाद फिर लास्ट स्टेप आता है आपका मैपिंग। मैपिंग, प्लेसमेंट बोलते हैं, या फिर राउटिंग, वी कैन से राउटिंग। अच्छा, आईसी की जब हम बात करें, वहां पे सिर्फ ट्रांजिस्टर्स हैं, तो हमें ट्रांजिस्टर्स को आपस में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? ट्रांजिस्टर्स के लिए आप अलग से तो वायर नहीं लेके जाओगे ना वहां पे। आईसी देखी है सबने? आईसी ऐसे करके ब्लैक, इस टाइप की स्क्वायर भी देखी होगी आपने, जिसके बहुत 64 लेग्स होते हैं उसके टर्मिनल। देखिए आईसी? यस। उसके अंदर कोई कंपोनेंट ऐसा होता है कि रेजिस्टर आपको ऊपर दिख रहा है इस पे लगा हुआ, या फिर डायोड दिख रहा है कोई लगा हुआ है इसके ऊपर? देखा कभी ऐसा कुछ? नहीं नो ना, सर सब उसके अंदर होता है। इंटरली हाँ, इंटरनली रहता है। तो इंटरनली ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स को ही कनेक्ट करके, ट्रांजिस्टर को हम रेजिस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को हम हर चीज की तरह यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कैपेसिटर। हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करके कैपेसिटर नहीं बना सकते, बाकी सब हम लोग इनबिल्ट कर सकते हैं। रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, वो सब कुछ हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करके बना सकते हैं। क्लियर है सबको? कैपेसिटर यस ही एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ता है। इसलिए जिस भी आईसी को हम सप्लाई देते हैं वहां पे कैपेसिटर पीसीबी के ऊपर आपको अलग से दिखेगा। लैपटॉप भी यूज करते हैं, एसएमपीएस अलग से होता है ना उसका, पावर सप्लाई। यस और नो? तो वो सब यस आईसी के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पे कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट। तो कैपेसिटर क्या होता है? एक्सटर्नली लगता है। तो इंटरनली जो कंपोनेंट्स होंगे, ट्रांजिस्टर्स होंगे, उनको जब आपस में कनेक्ट करेंगे उसे बोला जाता है राउटिंग या फिर प्लेसमेंट या फिर मैपिंग, कि उन्हें किस तरह से कनेक्ट किया जाए। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो होता है आपका एफपीजीए के अंदर इसको बिल्ड करना या फिर कॉन्फ़िगर करना। मतलब लास्ट स्टेप आता है आपका आईसी बना देना उसके बेस पे। तो ये आपका पूरा डिजाइन फ्लो जो चलता है। क्लियर है सबको? यस ठीक है, तो डिजाइन फ्लो के ऊपर अगर क्वेश्चन आया सॉल्व कर पाओगे इजीली?
अब देखो इंटरेक्टिव नहीं रखोगे सेशन को तो कुछ पता नहीं चलेगा कितनों को समझ आ रहा है कितनों को नहीं आ रहा। तो डाउट्स आने दो, यहाँ पे कुछ ऐसा डरने की जरूरत थोड़ी है, घर में ही तो बैठे हो अपने। यस ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं समझा अब हम सर। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट इज HDL। ठीक है, अब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं या फिर सीखने वाले हैं किस किस तरह से प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं और क्या रहता है एकदम इनिशियल स्टेप से। ठीक है, तो HDL दैट इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था दो होते हैं, VHDL एंड वेरिलॉग। और हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? VHDL पढ़ने वाले हैं। क्लियर? उसके भी हमने 3 डिफरेंट लेवल्स देख लिए हैं, बिहेवियरल, डेटा फ्लो एंड स्ट्रक्चरल। वो भी आप सभी को क्लियर है। चलो लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी एडर वी कैन से। ओके, बाइनरी एडर देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं बाइनरी एडर का। बाइनरी एडर में क्या होता है, 3 तरह से हम कर सकते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं किसका, स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको, जैसे हमने अभी फुल एडर लिया था वैसे ही बाइनरी एडर। अगर मैं बिहेवियरल में लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिंग 2 नंबर। यही बिहेवियर होता है इसका, बाइनरी एडर का। बाइनरी एडर का मतलब है 2 बिट्स को ऐड करना, 0 0 0 1 1 0 या 1 1 किसी को भी। ठीक है, तो बिहेवियर क्या होगा, एडिंग 2 नंबर, इसी को बोलेंगे इसका बिहेवियर। यस और नो? यस इसमें कोई डाउट है? ओके, सो इट इज कॉल्ड बिहेवियरल। नेक्स्ट डेटा फ्लो की अगर बात करेंगे तो क्या आ जाता है आपका, लॉजिक या फिर इक्वेशन बोलते हैं उसको, इक्वेशन लिख सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो गेट्स और उनके इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। डेटा फ्लो मतलब क्या होता है, बिहेवियर मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है। तीनों में अगर आपको थोड़ा भी डाउट रह गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो कोई भी एक बोल सकता है, बोलेगा स्ट्रक्चर लेवल पे एक्सप्लेन करो तो आपको वही करना पड़ेगा, बिहेवियर पे बोला तो बिहेवियर पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये सबको क्लियर होगा कि बिहेवियर, डेटा फ्लो एंड स्ट्रक्चर तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यस नाउ सर। अब हमें लैंग्वेज सीखनी है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। जब भी हम लर्न करते हैं कोई भी लैंग्वेज, सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं। अल्फाबेट पता होने चाहिए उसके, यस और नो? यहाँ पे भी हम बोलेंगे हमें यहाँ पे भी अल्फाबेट पते होने चाहिए हार्डवेयर के लिए, क्या क्या हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, दैट अल्फाबेट। उसके बाद नेक्स्ट वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब क्या होता है, यस, वोकेबुलरी नॉर्मल लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज, वर्ड्स और उनका मीनिंग पता होना, राइट? मीनिंग। तो उसे हम बोलते हैं लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ड सुना है आपने? सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था? यस Yes, sir. उसमें लेक्सिकल, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स ऐसे वर्ड सुने थे? वही चीज देख रहे हैं हम। मतलब जो वोकेबुलरी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको यहाँ पे लेक्सिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। जो ग्रामर होता है नॉर्मली, उस ग्रामर को क्या बोला जाता है, सिंटैक्स। इस लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में उसको बोलेंगे हम सिंटैक्स। और अब मीनिंग और उनका डिस्क्रिप्शन, मीनिंग एंड डिस्क्रिप्शन जो हमें रियल लाइफ में पता होना चाहिए, उसे यहाँ पे बोलते हैं सीमेंटिक्स। पॉइंट्स क्लियर है सब? ओके, शब्द संग्रह, हाँ वी कैन से दैट, प्योर हिंदी। ठीक है, सो लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सीमेंटिक्स, ये 3 ही चीजें होती हैं। वोकेबुलरी वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज लेक्सिकल एलिमेंट्स आ गए।
ग्रामर मतलब सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए। सिंटेक्स मतलब क्या होता है? सी आपने पढ़ा है, सेमीकोलन से खत्म होना चाहिए, सुना है? यस और नो? यस सर। सेमीकोलन रहता है ना लास्ट में। तो क्या यस रूल्स सर। हैं उसके? दैट आर सिंटेक्स। और मीनिंग एंड डिस्क्रिप्शन, क्या मतलब है उसका, वो सब चीजें जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्या है उस लाइन का, उस पर्टिकुलर जो भी हमने कमांड दिया है उसको, दैट इज नथिंग बट सिमेंटिक। ठीक है। तो ये जो लेक्सिकल है इसको हम और देखेंगे, लेक्सिकल एलिमेंट्स जो है इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स की बात कर रहा है, यही तो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो लेक्सिकल एलिमेंट ये होते हैं क्या? आइडेंटिफायर्स। इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके? आइडेंटिफायर्स आते हैं। उसके बाद आपके आते हैं कुछ रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल सिंबल एंड लिटरल। ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स मतलब क्या होता है? जो भी हम लिख रहे हैं वो आइडेंटिफाई किस किस को करेगा। आपने VHDL अगर प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत देखा होगा तो स्टार्ट करते हैं हम, कहीं पे आर्किटेक्चर लिखते हैं, कहीं पे कुछ लिखते हैं, राइट? तो वो सब चीजों का के बारे में किसको पता होगा? जो उनको आइडेंटिफाई कर रहा है, दैट इज आइडेंटिफायर। या फिर वी कैन से डेटा टाइप, कि कोई भी अगर मैं 1 लिख रहा हूँ तो क्या वो इंटीजर वाला 1 है या बिट वाला 1 है? दोनों अलग होते हैं ना। अगर बिट लिखा तो 0 या 1 वैल्यू ले सकता है, लेकिन अगर इंटीजर हुआ तो 0 to 9 वैल्यू कोई भी ले सकता है ना वो, या फिर और उससे ऊपर भी ले सकता है, उससे ज्यादा वैल्यू भी ले सकता है। यस और नो? यस सर। तो डेटा टाइप्स जो हम बात करते हैं दैट इज आइडेंटिफाई। रिजर्व्ड वर्ड, ये आपको पता है। अगर मैं बोलूं x इज a एंड b, मतलब x क्या है आपका? a और b का एंडिंग ऑपरेशन। तो ये एंड का मतलब भी तो पता होना चाहिए ना सिस्टम को। तो जो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं जिनका मीनिंग आपकी लाइब्रेरी, सिस्टम की लाइब्रेरी में है, उसे हम बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड। इसको कीवर्ड्स भी बोला जाता है। अच्छा, आपने सी या सी प्लस प्लस में से कोई लैंग्वेज किसी के बारे में पता है? Yes, सी sir. पता होगा तो प्रिंटफ स्कैनफ यूज किया है? यस सर। हाँ। यस। Yes. तो प्रिंटफ Yes. स्कैनफ जो होता है उसको आप नॉर्मली यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कंप्यूटर उसका मीनिंग क्या लेता है? प्रिंटफ मतलब उसे पता है कि आउटपुट दिखाना है, स्कैनफ मतलब उसे पता है कि इनपुट स्टोर करना है, राइट? तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिनका मीनिंग उस लाइब्रेरी में है, उसे हम बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है। फिर आपने बीच में उसमें केस यूज किए हैं, स्विच केस किए हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट्स यूज किए हैं, Yes. इफ स्टेटमेंट्स else, यूज किए हैं, while, फॉर लूप यूज किया है लूप्स। आपने। यस। तो ये सब क्या होता है? ब्रेक यूज किया है केस के लिए। तो ये सब जो होते हैं दे आर कॉल्ड रिजर्व वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स बोला जाता है, जिनका मीनिंग उसे पता है। ठीक है, सबको क्लियर है? रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं? हम इन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। ठीक है। देन स्पेशल सिंबल। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक्स, ये जो एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें मैंने एक एरो यूज किया है इस टाइप का, किया है ना? ये वाला एरो यूज, यस और नो? यस। तो ये सिंबल जो है इसका मीनिंग भी उसको पता होना चाहिए। तो दे आर नथिंग बट स्पेशल सिंबल। जैसे ये एक हो गया, उसके बाद हम सेमीकोलन। अच्छा, M% यूज किया है आपने, एंड यूज किया है आपने, ये भी यूज किया ना सी में, C++ सी में। Yes. तो ये सब होते हैं स्पेशल सिंबल्स बोला जाता है इनको। ठीक है। और लिटरल्स क्या होते हैं? एनीवन? लिटरल्स अल्फाबेट्स। अल्फाबेट मतलब मतलब जो हम कांस्टेंट लेबल। यूज करते हैं। Constants. constant. यस, यस, दे आर नथिंग बट कांस्टेंट। जैसे हम इंटीजर कोई कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर, बूलियन, कैरेक्टर जो भी हम लेते हैं ना, वो सब जो कांस्टेंट्स ले रहे हैं उसके सामने दैट इज नथिंग बट लिटरल। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अच्छा, उसके Yes, बाद sir. सी और C++ में, और यहाँ पे एक चीज जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि
C++ में सारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं सीक्वेंशियली चलती हैं, पहले एक स्टेटमेंट रन होगी, फिर दूसरी होगी, फिर उसके नीचे वाली होगी, ऐसा ही होता है? हाँ या ना? yes, हाँ होता है ना सीक्वेंशियली। लेकिन यहाँ yes, पे sir. ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं हमारे, एडर सब्ट्रैक्टर, ये जो सर्किट्स होते हैं, ये एक बार में सारी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को बोला जाता है कॉन्करेंट स्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्करेंट स्टेटमेंट क्या होती है? दे आर ऑलवेज रेडी टू एग्जीक्यूट। हमने जैसे ही ऑन किया, ये एक साथ रन होती हैं साइमल्टेनियसली। ओके, ऐसा नहीं है कि पहले एक लाइन होगी फिर दो लाइन होगी। इट्स नॉट लाइक दैट। ये क्या होता है, एक बार में सारी की सारी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होती है। आ रहा है समझ में? yes Yes, sir. sir यस, चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बस एक हम। ए एंड बी। अच्छा, पहले मुझे एक फ्रैंकली बताओ कि इसके बाद हमें और एक सेशन लेना चाहिए इसके ऊपर, आज ही चीज कल करोगे? बोलो बोलो, फ्रैंकली फ्रैंकली, अगर आपको Frankly लगता है कि बोलो, हमें कल लेना yes. चाहिए आज के लिए ज्यादा हो। कल लो ना सर कल ओके ओके ओके, कल ले लो ठीक सर. है, चलेगा, कल लेंगे। अभी सिर्फ एक कॉन्करेंट स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देख लेते हैं, देन वी विल क्लोज। ये हो गया डी, और यहाँ पे आउटपुट मिल गया आपको ई। तो यहाँ पे वी कैन से ये हो गया हमारा सी। सो सी इज नथिंग बट ए एंड बी, राइट? सी यही है ना आपका? Yes, sir. यहाँ पे हम एक डिले लिख देते हैं, दैट इज आफ्टर 5 नैनोसेकंड, और उसके बाद वी कैन राइट ई, दैट इज सी और डी, दैट्स आल्सो आफ्टर 5 नैनोसेकंड। क्या होता है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं साइमल्टेनियसली रन करती है, मतलब जब आपका सी आएगा तभी तो आपका नेक्स्ट स्टेट आने वाला है ना, आया ना? Yes, sir. तो क्या होता है, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, दोनों एक बार में। जो ए डेटा इधर गया, बी यहाँ गया, डी यहाँ पे पहुंच जाता है, सी का वो यहाँ से लेके रखता है पहले से क्या है। तो 5 नैनोसेकंड बाद इसका आउटपुट आएगा, और पहले 5 नैनोसेकंड के बाद फर्स्ट स्टेज का आउटपुट आएगा। ठीक है, इसको हम और डीपली देखेंगे कल से। तो इस तरह से हम धीरे धीरे प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने छोटा सा एक प्रोग्राम लिया, इसके बारे में और बताऊंगा मैं, क्या है एंड लिया है और लिया है क्या है, इसको स्मॉल में ही लेंगे या इसे कैपिटल में भी ले सकते हैं, या मिक्स करके ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे। किसी को कोई डाउट? No, sir.